اینی کچن میں کھڑی ناشتہ کر رہی تھی جب رضیہ کچن میں داخل ہوئی اور اسے آ کر بولی، اینی شاہزین سر کہہ رہے تھے کہ تمہیں کہوں کہ ان کے کمرے میں کافی بنا کر دے جاؤ۔ اینی جو دم والا منہ میں ڈال رہی تھی وہ رضیہ کی بات سن کر حلق میں ہی پھنس گیا اور وہ زور زور سے کھانسنا شروع ہو گئی۔ اینی نے جلدی سے اپنے سامنے پڑے گلاس کو اٹھا کر منہ سے لگایا۔ جب کھانسی رکی تو رضیہ کو خود کو دیکھتے پا کر وہ سنبھل کر بولی، ٹھیک ہے میں بنا دیتی ہوں، آپ پلیز سر کے کمرے میں دے آئیے گا۔ بالکل بھی نہیں، شاہزین سر نے کہا ہے کہ اسے کہنا وہ خود پھر کر جائے۔ رضیہ اس کی بات سن کر جٹ سے بولی تو اینی نے گہرا سانس لے کر اپنا سر ہلایا اور جلدی سے ناشتہ ختم کر کے شاہزین کے لیے کافی بنانے لگی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے شاہزین کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی تو اسے نہ پا کر جلدی سے کافی میز پر رکھ کر جانے لگی جب اسے شاہزین کی آواز بالکنی سے سنائی دی، حور مجھے ادھر کافی پکڑا کر جاؤ۔ وہ شاہزین کو کافی پکڑانے کے لیے بالکنی میں گئی اور اسے کافی پکڑانے کے لیے اپنا کافی والا ہاتھ آگے کیا تو شاہزین نے پہلے اینی کو ایک نظر اوپر سے نیچے تک دیکھا تو اینی کو اس پر شدید غصہ آیا۔ شاہزین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کافی کا مگ پکڑنے کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ موجود تھی۔ اینی نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں دیکھا تو اپنے ہاتھ میں موجود کافی کا مگ چھوڑ دیا، جس سے گرم کافی شاہزین کی چپل میں موجود پیروں پر گری اور ساتھ ہی تھوڑی کافی اینی کے پاؤں پر بھی گری۔ آہ! شاہزین نے اپنے پیروں پر کافی گرنے کی وجہ سے جلن محسوس کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت ہلکی کی تو اینی نے اسے دھکا دے کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں، رہتی تو تم میرے ہی گھر میں ہونا، اب مجھ سے تم بچ کر دکھانا۔ جبکہ اپنے پیچھے شاہزین کی غصے سے بھرپور آواز سن کر وہ ڈر گئی تھی۔ شاہزین جلدی سے واش روم میں گیا اور اپنے پیروں پر پانی گرایا جو سرخ ہو چکے تھے، اور اب تو جیسے اس پر اینی کی زندگی حرام کرنا فرض ہو گیا تھا۔ رشبہ بیڈ پر بیٹھی آج بھی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ گھر والوں کے سامنے وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر وہ اس واقعے کے بعد اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ جب ہاشم اس کے حق میں لفظ بھی نہ بولا تو اسے اس وقت ہاشم سے محبت پر خود سے بے حد نفرت ہوئی، جو اپنی بیوی کو چپ نہیں کروا سکا۔ اتنی شرمندگی محسوس ہوئی تھی اس کے بعد میں، مگر انہوں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اسے چپ ہوئے کہ عالی سے کم ہی بات کرتی اور وہ خود بھی کمرے میں بند رہتی تھی تاکہ اپنے باپ کی نظروں میں خود کے لیے نفرت نہ دیکھ سکے۔ مگر احد صاحب نے تو کبھی اس سے نفرت کی ہی نہیں تھی، وہ تو بس اس واقعے کے بعد عالی کا سوچ کر خاموش ہو گئے تھے۔ رمنا بیگم اور ارکم نے اس عرصے کے دوران اس کا بہت ساتھ دیا تھا، اور سب سے بڑی بات اسے کسی چیز کا تانا نہیں دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس نے وہ ڈائری کا ایک ایک صفحہ خود اپنے ہاتھوں سے جلایا تھا تاکہ ہاشم کے لیے اپنے دل میں موجود محبت ختم کر سکے، مگر ضروری تو نہیں جیسا ہم چاہیں ویسا ہو جائے۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ کچی عمر کی محبت جلدی ختم نہیں ہوتی، اور اس کی محبت تو تھی بھی بے لوث اور خالص۔ اینی شاہزین کے کمرے سے نکل کر سیدھا کچن میں آئی۔ ابھی وہ اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی جہاں اسے جلن ہو رہی تھی کہ اسے شاہزین کی آواز سنائی تھی، جس سے اس کی دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی تھی۔ شفق کینٹین میں رشبہ کے ساتھ بیٹھی چپس کھا رہی تھی جب اسے سامنے سے ارکم کسی لڑکی سے مسکرا کر باتیں کرتا ہوا نظر آیا۔
वो जो बड़े मज़े से चिप्स खा रही थी, इसे लड़की के साथ देखकर इसका हल्क तक कड़वा हो गया। उसने अपनी नज़रों का रुख अपने सामने बैठी अलिशा की तरफ किया, जो इससे कुछ कह रही थी। सॉरी आली, मैंने सुना नहीं, तुम क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ कि कल जो असाइनमेंट जमा करवानी है, तुमने वो बना ली है या अभी बनानी है? अलिशा ने जूस पीते हुए इससे पूछा। हाँ, मैंने बना ली है, बस आखिर से थोड़ी सी रहती है। शफक ने एक नज़र अरकम को देखकर आली से कहा, जो अब इस लड़की के साथ इससे कुछ दूर एक टेबल पर बैठ गया था। पीछे क्या देख रही हो आली? पीछे देखते हुए बोली तो शफक की पलकों गड़बड़ा गई और आली के पीछे देखने से पहले ही बोल पड़ी, कुछ नहीं, वैसे ही देख रही थी। तुम बताओ, तुमने असाइनमेंट बना ली? शफी अभी बताया तो है, बना दिया। आली की बात सुनकर वो कुछ बोलने लगी कि अरकम को अपने टेबल की तरफ आता देखकर इसने अपना बैग कंधे पर ढाला और अरकम के अलिशा के पास पहुंचते ही उठते हुए बोली, आली, मुझे याद आया, सर मुअज्जम ने मुझे बुलाया था, मैं इनकी बात सुनकर आती हूँ। आली ने हैरान नज़रों से शफक को देखा, क्योंकि वह पूरा वक्त शफक के साथ ही थी। इसे नहीं पता चला कि सर ने इसे कब बुलाया, सर ने इसे बुलाया भी था, मगर अपने पीछे अरकम को देखकर वो कुछ बात समझ चुकी थी। अरकम जो आली से बात करने आया था, इसके अचानक उठने पर इसने शफक को एक नज़र देखा, जो अपनी बात करके जा चुकी थी। आली, मैं अपने दोस्तों के साथ करीबी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, मेरे अगले लेक्चर फ्री हैं, जब तुम फ्री हो गई मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। ओके भाई, मैं मैसेज कर दूँगी। आली भी कुर्सी से उठते हुए बोली। अरकम इसे बताकर अपने दोस्तों से मिलने कैंटीन से बाहर चला गया, जहाँ इसके दोस्त खड़े इंतज़ार कर रहे थे। एनी आज शहर बेगम से इजाज़त लेकर हादी से मिलने जा रही थी। इसकी टीचर का फ़ोन आया था कि इसे बुखार है। वो परेशान सी घर से निकली और हादी के हॉस्पिटल इससे मिलने चली गई, जबकि हादी की फ़िक्र से इसकी खुद की हालत भी ख़राब हो रही थी। वो ऐसी ही थी हादी, जब भी बीमार होता तो इसकी फ़िक्र से इसकी खुद की भी हालत ख़राब हो जाती थी। वो हादी से बेपनाह मोहब्बत करती, आखिर क्यों ना करती। वो मोहब्बत हादी ने सारा बचपन इसके साथ ही गुजारा था। इसने इसे बहन नहीं माँ बनकर पाला था। वो छोटा सा था जब इनके वालिदैन की वफ़ात हुई। शायद इससे वो लोग याद भी सही तरह नहीं रहते अगर एनी ने इसे दुरैद साहिब और रिदा बेगम की तस्वीरें न दिखाई होती। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचकर इसने एक गहरा सांस लिया और अंदर दाखिल हुई और हादी के कमरे में गई। वो नडाल सा बेड पर लेटा हुआ था, इसका रंग भी सुर्ख पड़ा था। वो तेज़ी से इसके करीब गई और इसके सर को चूमा, फिर हाथ से इसका बुखार चेक किया। इसका माथा बुखार की शिद्दत की वजह से जल रहा था। हादी ने अपनी थोड़ी सी आंखें खोलकर इसे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। एनी हापी, मैं आपको बहुत ही याद कर रहा था। इसकी कमज़ोर सी आवाज़ सुनकर इसकी आंखों से एक आंसू गिरा। हादी मेरी जान, आपी भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। और चलो शाबाश, उठो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। आपी मेरी उठने में मदद करें। हादी ने अपनी बाहें फैलाकर कहा तो इसने जल्दी से इसे अपने साथ लगाते सहारा देकर खड़ा किया और बाहर की जाने पड़ गई। रिक्शे में बैठकर इसने करीबी किसी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में से ले जाने का कहा, जबकि हाथी इसके कंधे पर सर रखकर आंखें मूंदे बैठा था और एनी इसके गिर्द अपने बाजू फैलाए हुए थे। करीबी सरकारी अस्पताल के करीब रुककर इसने हादी को अपने साथ लगाते हुए रिक्शे से उतारा और इसे अंदर ले गई। डॉक्टर से चेकअप के बाद डॉक्टर ने इसे बताया कि हादी को 100 से ऊपर बुखार था।
वो जानती थी कि हादी को इतना ही बुखार होगा, इसका माथा जो तप रहा था। डॉक्टर ने इसे दवाएं लिख कर दी तो इसने एक नर्स को पैसे देकर दवाएं मंगवाईं और इसके हॉस्टल कॉल करके बताया कि वो हादी को अपने साथ ले जा रही है। वो हादी को अपने साथ घर ले गई और इसे नेक्सी में मौजूद अपने कमरे में ले गई। एनी ने इसे लेटने का कहा और जल्दी से किचन में जाकर हादी के लिए जो रास्ते से बिस्किट और दूध वगैरह लाई थी उसने बर्तन में डालकर नीम गर्म किया, जबकि रज़िया भी किचन में ही थी। एनी दूध गर्म करके हादी के पास लाई और इसे उठाते हुए बिस्किट दूध में दबोकर खिलाने लगी। बिस्किट खिलाने के बाद इसने हादी को दवाई दी और बाकी दूध पिलाकर बर्तन साइड पर रखकर इसे लिटाकर इसके चेहरे पर बाल हटाकर बोसा दिया और जल्दी से किचन में से ठंडा पानी लाकर लेकर आई और थोड़ी देर इसकी पट्टियाँ की। जब इसे लगा कि हादी का बुखार हल्का हो गया है तो वो इसके करीब से उठी जो सोया हुआ था और बाहर सहर बेगम के कपड़े इस्त्री करने चली गई, जो इन्होंने इसे शाम तक कर देने का कहा था। वो कपड़े इस्त्री करके 2 घंटे बाद फारिग हुई और हादी को एक नज़र कमरे में देखने गई। वो हर आधे घंटे बाद हादी को एक नज़र देखने जाती कि कहीं वो उठ ना गया हो या इसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। हादी को देखकर वो रज़िया के पास गई, जिसने इसे शाहज़ैन के कमरे में कबाब और कॉफ़ी देने जाने का कहा तो वह पहले इनकार करने लगी, मगर रज़िया को खुद को घूरते पाकर वो जल्दी से ट्रे पकड़कर शाहज़ैन के कमरे की जानिब चल दी। जबकि सुबह की भाग दौड़ से अब इसे थकावट होने लगी थी। वो दिल में बस यही दुआ कर रही थी कि शाहज़ैन कमरे में ना हो। वो कमरे का दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई तो शाहज़ैन को सोफे पर बैठा देखकर इसका दिल हलक को आ गया और वो अपने खुश्क होंठों को ज़ुबान से तर करती अंदर दाखिल हुई और ट्रे इसके सामने टेबल पर रखी। शाहज़ैन ने इसे आता देखकर अपने दोस्त को मैसेज करके मोबाइल मेज़ पर रखा और इसकी तरफ देखा, जो नज़रें ज़मीन पर झुकाकर इसकी तरफ देखे बिना ट्रे रख कर वापस जाने के लिए मुड़ने लगी कि शाहज़ैन ने तेज़ी से उठकर इसका हाथ पकड़ा। इसे हाथ पकड़ता देख एनी डर गई और इसे हाथ छुड़ाने के लिए दूसरे हाथ से इसके कंधे पर मुक्के मारने लगी। शाहज़ैन ने इसकी नाकाम कोशिश देखी तो हल्का सा कहका लगाया, तुम कभी भी मेरी गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो सकती। जल्द ही मैं तुम्हें अपने पास कैद कर लूँगा और तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा स्वीट हार्ट। शाहज़ैन की बात सुनकर एनी ने अपनी खौफ से फैली आंखों से इसे देखा और रंधी हुई आवाज़ में मनमनाई, प्लीज़ पेपर प्लीज़ जाने दें, मेरा हाथ छोड़ दें, आपको खुदा का वास्ता, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। शाहज़ैन ने इसकी कांपती आवाज़ सुनकर इसका हाथ छोड़ने की बजाय इस पर गिरफ्त मजबूत कर दी। कभी सोचना भी मत कि शाहज़ैन तुम्हें जाने देगा और ये हाथ मैं जल्द ही हमेशा के लिए थाम लूँगा। इसके हाथ को आखिरी बार दबाते हुए छोड़ता वो वापस सोफे पर आकर बैठा। एनी इसकी बात का मतलब समझे बिना इसकी गिरफ्त से रहाई पाते तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। शफ़क़ यूनिवर्सिटी से आई तो इसका दिल किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। बार बार सामने अरकम की तस्वीर आ रही थी, इसके साथ अरकम मुस्कुरा रहा था। पता नहीं खुद को समझता क्या है, मेरे सामने तो कभी हल्का सा भी नहीं मुस्कुराया। बस हर वक्त मुँह में अंगारे के वास्ते दिखता है और दूसरे के साथ कैसे मुस्कुरा कर बातें करता है। शफ़क़ ने अपने सामने नोट्स रखी अर्पण को बुला कर बर्तन के चालक को झटक कर दोबारा अपने नोट्स की तरफ मुड़ता होने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अब भर खाकर वो नोट्स बंद कर गई थी और बाहर लॉन में चली गई।
मगर जाते हुए रज़िया से चाय का कहना नहीं भूली। हादी कब से जागकर एनी का इंतजार कर रहा था। इसका बुखार अब तकरीबन उतर ही गया था। आखिर इंतजार करने के बाद तंग आकर वो अपनी जगह से उठा और अनेक्सी के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तो इसी वक्त एनी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और उसे उठते देखकर इसके करीब आई। हादी मेरी जान, अब कैसा महसूस कर रही हो? एनी आती, अब मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर के लिए बाहर गार्डन में जाना चाहता हूँ। तो फिर से बोला कि एनी ने उसे बेबसी से जवाब दिया, हादी आपको बुखार है ना? बुखार है ना? आप शाबाश, लेट कर आराम करो। नहीं आपी, मुझे बाहर जाना है, हादी जिद से बोला। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अनेक्सी के सामने ही रहोगे, पूरे गार्डन में नहीं घूमोगे, और अगर कोई कुछ कहे तो फौरन वापस कमरे में आ जाना। मैं बस तुम्हें देखने आई थी, मुझे अभी वापस काम करके अंदर आ जाना है। एनी हादी के बाद इसके माथे से पीछे करके अपना हाथ से इसका दर्जा हालत चेक किया और हल्के से इसके माथे पर चुमकर बोली, ओके आपी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। हादी बोलते ही एनी को हाथ से पकड़कर बाहर की तरफ से खींचते हुए बोला। एनी इसके साथ चलती हुई बाहर आई और इसे लॉन में छोड़कर वापस घर के अंदर चली गई। शफक जो घर के गिर्द मौजूद सारे लॉन में वॉक कर रही थी, नेक्सी के सामने एक छोटे बच्चे को बैठा देखकर इसके करीब आई। हादी घास पर बैठा उसे अपने अंगूठे से हल्का हल्का कुरच रहा था कि अपने सामने किसी लड़की को खड़ा देखकर इसने अपनी मुतजस्सिस आंखों से इसे देखा। कौन हो तुम? शफक इसके करीब बैठते हुए बोली। वैसे भी तो अपना ध्यान अरकम से बिताना चाहती थी, इसी वजह से इसने हादी का इंटरव्यू लेने का सोचा। मैं एक इंसान हूँ। हादी पहले अपनी तरफ इशारा करके फिर सोचते हुए शरारत से बोला। तो शफक ने इसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मेरा मतलब था कि नाम क्या है तुम्हारा, और ये प्यारा बच्चा हमारे घर क्या कर रहा है? मेरा नाम हैदर है, लेकिन प्यार से सब हादी कहते हैं, और मैं एनी हादी के साथ आया हूँ। हादी ने उसे जवाब दिया तो शफक ने हैरत से इससे गोरे चिट्टे बच्चे को देखा और फिर सुहन ने सांवली सी दूर का चेहरा आया। क्या तुम इसके भाई हो? ओहो, अभी तो बताया ना कि वो मेरी आपी है। इसका मतलब यही हुआ कि मैं इनका भाई हूँ। शफक की बात सुनकर इसने माथे पर हल्का सा हाथ मारते हुए सियानों की तरह बोला तो शफक इसकी इस अदा को देखकर मुस्कुरा उठी। अच्छा तो तुम ये बताओ कि आज तुम यहाँ क्या कर रही हो? हादी पहले कहाँ रहते थे? मैं पहले हॉस्टल में रहता हूँ। आज मुझे बुखार था तो आप ही अपने साथ यहाँ ली हूँ, और आप मुझसे सवाल पूछे जा रही हो, अपने बारे में नहीं बता रही कि आपका क्या नाम है? अच्छा सही, तभी तो तुम आज यहाँ मौजूद हो, और मेरा नाम शफक है और ये मेरा ही घर है। शफक ने मुस्कुराकर जवाब दिया और हादी के साथ बैठकर मज़ीद बातें करने लगी। फिर मगरिब की अज़ान पर इसके करीब से उठी और इसे भी वापस कमरे में भेजकर खुद नमाज अदा करने के लिए कमरे में चली गई।